Okay, so the previous demonstration was I picked up the word from the audience and I wrote on the whiteboard and we discussed that, right? So this demonstration is going to be different from the previous one because in this demonstration I have picked up certain words and I have written down those words here. And then I want to ask you if you know the meaning of certain words or not, and then I will let you know the meaning of these words. Right? I will also explain the meaning. I mean, meaning is not just what a dictionary meaning is, but how you should memorize these words, how you should understand the placement of the word, okay, and then how you should use these words, okay. So usage is also important. I mean, the exam is no doubt about just understand the vocabulary, but if you know the usage of the word, then you memorize these words, the meaning of these words quickly. Okay. The first word is reticent. Okay. So anyone who knows the meaning of reticent. Okay. I will ask you the meaning and then I will let you know the meaning. Reserve. Reserve. Okay. Reserve. So reticent means a person who does not speak much about himself. Okay. Person who is shy or reserved. So reticent is an adjective. It means shy, a person who is shy or reserved. Okay. Okay. Another word is taciturn. Quiet. Okay. Quiet. If someone else could explain more, would I mean improve upon the meaning of quietness. Sir, uncommunication. Taciturn means a person who does not communicate much. Understand? The person who speaks a few words. Who speaks a few words. Okay? So another question is what is the difference between reticent and taciturn? Can we use them in place of each other or not? Okay, and you can see that both revolve around the word, I mean like reserved, person who speaks less. So then where lies the difference? Where lies the difference? Right? So taciturn is from a person who is because of anger, because of some mental or other health illness, or because certain issues, he speaks less. He speaks a few words. That person is taciturn. Right? So taciturn is not a general criteria, general characteristic of a person. Taciturn is under special circumstances, certain mental behavior, other attitudes. Okay, a person becomes mute, near to mutation, mute. Okay, he does not speak because of certain agony, because of certain depression. Okay, so that person is taciturn. And reticent means a person who is shy of speaking. Okay, yes, introvert. But that person can be introvert. Okay, he does not like to speak much. Or in social gathering, he does not like to mix up with people and keep on speaking. Got it? So understand the meaning of the difference between taciturn and reticent. So the point is you should understand these certain differences between the words and do not mix their meanings. Okay, apparently the meanings are nearer to each other, but actually the meanings are different. The usage should be different. Okay? So a person who is reticent may not be taciturn and vice versa. A person who is taciturn may not be reticent. Okay? So taciturn person we find the people who are under shock. Okay? People who are under shock, they commonly go taciturn. Okay? People who are under a shock, under agony, okay? They go taciturn because they don't know what to speak. Otherwise, they may be better speaker than others, but because of certain circumstances, they go speechless. Right? And everyone should be reticent in the public gathering. Okay? If you speak more, you commit more mistake. Understand? So that is the difference between reticent and taciturn. Okay, the other word is equivocate. Anybody knows the meaning of equivocate? Equivocate means not clear. A person who does not speak clearly
I mean, a person who does not speak the truth, a person who tries to hide the truth and speak the word which are ambiguous. Okay? It's called equivocate. क्या बात को उर्दू में से कि बात को झूठ apparently actually it is a lie, झूठ बोलना, लेकिन ऐसे तरीके से हो कि बहाना बना के बोलना, किसी को पता ना चले, राइट? हम कहते हैं आप साफ बात नहीं कर रहे, तो जो लोग साफ बात नहीं कर रहे हम कहेंगे यू आर इक्विवोकेटिंग। ओके, साफ साफ बात नहीं करना, बात को गोल गोल करना। ओके, सो गोल गोल जवाब देने को कहते हैं इक्विवोकेट। And then is okay, so मैंने आपको बताया कि गोल बात करना, ये not speaking the truth, not the truth clearly। एक है झूठ बोलना, एक है सच बोलना, एक है कि दरमियान वाली बात करना। Understand? That is equivocation. Equivocate is a verb. Okay, tacit one is adjective. Okay. Right? जो मैंने आपको बताया कि some people who are reserved, इससे एक related word है, उसे कहते हैं indiscretion. Okay, this is how we can derive a word from another word. Indiscretion. Anybody knows the meaning of indiscretion? Indiscretion होता है कि किसी बात को छुपाने में नाकाम रहना, राइट? बातों बातों में सच उगल देना, बगलती कर देना, ऐसे कहते हैं आप। ओके, एक बात आप कर रहे हैं, उसको गलती छुपाना, बात आपको छुपानी चाहिए थी लेकिन आपने बात कह दी, बता दी किसी को। ओके, indiscretion, this called indiscretion, राइट? तो हम कहते हैं people should not be indiscretion। अगर आप indiscretion करेंगे तो आप अपनी जो reticence reservation है उसको break करेंगे। Okay, so you are reserved because you want to hide certain issues, might be truth or lies। ठीक है, कम बोलेंगे तो कम गलती करेंगे ना, कम एक्सपोज होंगे, तो you don't want to expose yourself, you want to be reticent। लेकिन गलती से कोई चीज आपकी जुबान से स्लिप हो जाती है तो कहते हैं indiscretion। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने टीचर के मतलब या अकेडमिक के मतलब रिमार्क्स देते हैं इन द क्लास, राइट? सो वो ऐसे शख्स के सामने देते हैं जो उन्हें जाके बताएगा, तो दैट इज योर इंडिस्क्रिशन। आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जब तक एटलीस्ट किसी जगह से भी, ऑफिस से भी आप यू स्पीक मतलब टू बैक बाइट समबॉडी, ये बैक बाइटिंग का मतलब नहीं है, इसका मतलब है गलती करना। ठीक है, गलती से कुछ अपनी बात का, सच का, ख्याल का इजहार करना, कहते हैं डिस्क्रीट। ओके, तो हम कहते हैं यू शुड बी डिस्क्रीट। ओके, तो उसका उलट क्या है? डिस्क्रीट, राइट? तो डिस्क्रीट का मतलब है खामोशी के साथ काम करना। तो हम कहते हैं कि जो हमारी महफिल है सोशल गैदरिंग, वी शुड बी डिस्क्रीट। ठीक है, हमें दूसरों के कपड़ों, ड्रेस, इस पे बात नहीं करनी चाहिए। ओके, बिकॉज वी आर सोशल गैदरिंग, वी आर कॉमनली समटाइम वी ज्वाइन सोशल गैदरिंग टू एनहांस आवर सोशल सर्कल। हमारे मुल्क में तो शायद ऐसा नहीं, लेकिन दूसरे मुल्कों में हम सोशल गैदरिंग इसलिए करते हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग है, वी वांट टू एनहांस आवर सोशल सर्कल, ताकि कल हम उसमें के अंदर से ही बिजनेस पार्टनर बोले, अपने बिजनेस को प्रूव करें, अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने वगैरह, राइट? तो लेकिन इफ यू मेक पर्सनल कमेंट्स अबाउट समबॉडी, इट मीन्स यू आर डूइंग इंडिस्क्रिशन और यू आर वायलेटिंग द रूल ऑफ बीइंग डिस्क्रीट। ठीक है, समझ आ गई? तो अगर आपका इंटरव्यू होगा सीएसएस का, तो यू हैव टू बी डिस्क्रीट। हाँ ना बोलते करें, ठीक है, हाँ इधर उधर की ना हाँकते रहे, इसे कहते हैं हाँकना, तो वो है। अंडरस्टैंड ना? तो उर्दू के लफ्ज़ से आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है। सो आई ट्राई टू पिक अप सर्टेन उर्दू वर्ड्स। ओके, स्टुपेंडोस का क्या मतलब है? हाँ, इम्प्रेसिव भी है, ऐसी बहुत बड़ी चीज जो मैग्निफिसेंट हो, जो आपको बहुत मुतास, आपको हैरान शश्तर कर,
हाँ, अमेज कर दे, शस्त्र कर देना, स्टुपेंडस। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, जैसे किसी का बड़ा काम है, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग उससे तो ज्यादा काम है, लेकिन किसी मजदूर का या किसी ठेकेदार का या वॉट एवर द पर्सन जो आर्टिसन है, उसका बिल्डिंग बनाना इज ए स्टुपेंडस वर्क, राइट? हम कहते हैं स्टुपेंडस वर्क। जैसे बहरी जहाज का बनाना इज ए स्टुपेंडस वर्क। बहरी जहाज खुद भी बहुत इंप्रेसिव होते हैं, लेकिन जो उसको बनाने वाला है या जो उसको बनाने की एफर्ट है, दैट इज स्टुपेंडस। ओके, तो इंप्रेसिव, हैरान कर देना, शस्त्र कर देना। हैरान करना थोड़ा छोटा, लेकिन शस्त्र करना में ज्यादा ताकत है देने हैरान होना। आप कहेंगे दो दफा हैरान होंगे तो आप शस्त्र होंगे या शस्त्र होंगे, व्हाटएवर इट इज, राइट? तो ज्यादा हैरान होना इसे कहते हैं स्टुपेंडस। ओके, तब ही वाज सिक। ये थोड़ा मुश्किल वर्ड होगा। ओके, इसका मतलब इक्विवोकेट है। इसका मतलब ये है गोल मोल बात करना। ओके, सो व्हाट हैपेंस, राइटर्स जो है ये उनके साथ एक बीमारी कह लें कि when they use, people are using these words 2-3 times in their different essays, so they get fed up of this word, any word. They go for alternative, right? तो ये alternative जो है ये राइटर ने अपने लिए एक नयापन ढूंढता है, राइट? तो जो पढ़ने वाला है उसके लिए मुसीबत बन जाती है कि ये आप इसमें क्या करें। अंडरस्टैंड? सो जब आप पढ़ रहे हो तो ये चीज समझे कि राइटर ने अपनी क्रिएटिविटी, अपने माइंड, अपने लिए नया बन ढूंढा है। आपके लिए पूरा आर्टिकल नया होगा, ठीक है? आप मेनी वर्ड्स और ऑल ऑफ द वर्ड माइट बी न्यू, लेकिन वो अपने लिए नयापन ढूंढ रहा है, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट। या कोई भी राइटर की अर्ज है टू लर्न मोर और टू नो मोर, वो पूरी होती है। और इससे ऊपर कोई वर्ड नहीं है, इज अ टॉप वर्ड, ठीक है? मैं भी इस तरह के अल्फाज यूज करता हूँ अपने। टॉकर, अनस्टेडी वे, लड़खड़ा हो। ओके, हम इसे कह सकते हैं फॉल्टर। ओके, सो टॉकर, एक वर्ड है ट्रॉट। अब इसका बताइए, इसी से रिलेटेड है ये ज्यादा कॉमन है ट्रॉटर से। तो ट्रॉट का मतलब क्या है? ट्रॉट के दो मतलब है, एक है लिटरल मीनिंग, एक है फिगरेटिव मीनिंग। लिटरल मीनिंग का मतलब है जैसे पेड़ में मरोड़ पड़ते हैं तो आवाज आती है आपको, पेड़ में मरोड़ पड़ेगा तो आवाज आएगी, वो आवाज को ट्रॉट कहते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रात को खाना ज्यादा खा लिया तो सुबह यू माइट फील ट्रॉट्स इन योर स्टमक, ओके, यू कैन से देन माय स्टमक इज ट्रॉटिंग, राइट? तो लेकिन ट्रॉट का एक और मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, I mean, जैसे घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलता है। एक है घोड़े की रनिंग, एक है घोड़े का चलना। तो जो दरमियान वाली स्टेज है जिसमें घोड़ा चल भी रहा है, भागने जैसी आवाज दे रहा है लेकिन भाग नहीं रहा, ओके, उसको कहते हैं ट्रॉट। तो कहते हैं दुल की चाल, घोड़े की दुल की चाल सुना कभी कहा? घोड़ा पाँव टाप जमीन पे मारता है, अपने पाँव मारता है, राइट? उसको कहते हैं। लेकिन उसी ये दोनों के दोनों वर्ड यू माइट बी सेम कि ये तो हमारे उसमें यूज नहीं होते, लेकिन ये यूज होते हैं, ओके? फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की इकोनॉमी इज ट्रॉटिंग एट द मोमेंट, ओके? पाकिस्तान की इकोनॉमी खुद भी स्लो हुई है तेज चलने के कोशिश में, और उसकी जो पेन है वो आप भी फील कर रहे हैं, ओके? तो पाकिस्तान इकोनॉमी इज ट्रॉटिंग एट द मोमेंट। गाड़ी में तो इस तरह से ये इंग्लिश के एक्सप्रेशन ये कुछ ऐसे बनते हैं। And then Jane का क्या मतलब है? आसान वर्ड है ये तो। आसान मतलब है कॉमनली यूज। नहीं, डिजाइन थोड़ा मुख्तलिफ है, कोई और बाकी कॉमनली डेयर टू अपने साथ। इसका मतलब है कॉन्डिसेंट, लुक डाउन अपॉन, आई टेंड टू कंसिडर। किसी बंदे शख्स को भी हम मिलते हैं, हम कहते हैं कि
फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे के मतलब कहते हैं कि उसने मेरे पे निगाह डालनी भी पसंद नहीं की, उसने मुझे, मेरे टीचर ने, मेरे दोस्त ने, जब वो पास हो गया और मैं फेल हो गया तो उसने मुझे देखना भी गवारा नहीं किया. He did not even deign to consider me present there. He did not even deign to look at me. Got it? आपके साथ वाला बैठा हुआ दोस्त है, ये सीजन पास करेगा तो वो आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा. Got it? कहते हैं deign. Condescend. So condescend is also a very commonly used word. Condescend का मतलब पता है? मैं तो इसलिए लिखा कि ये पता होगा आपको. टू बिलिटल, या किसी को हद तक अमेज नजर से देखना. लुक डाउन अपॉन का मतलब है कि किसी को कम तर समझना, अपने से कम तर समझना. ठीक है, उसे कहते हैं कॉन्डिसेंट. लुक डाउन अपॉन भी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं डू नॉट कॉन्डिसेंड द पुअर. हकारत की नजर. गरीब लोगों को हकारत की नजर से ना देखें. ओके, डू नॉट लुक डाउन अपॉन द डिप्राइव्ड. अगर जो लोग जिनके पास जो गरीब लोग हैं आप उनको लुक डाउन अपॉन नहीं करें. ये दूसरा लुक अप टू, चले वो तो खैर एक लगा नजर रोज है. क्या मतलब है? मदद के लिए देखना. नहीं देखना, लेकिन देखभाल करना. नो, वो लुक आफ्टर है. एडमायर करना किसी को. नो, एडमायर करना भी नहीं है. नो, उम्मीद कर, ये तो आसान है, ये तो आना चाहिए आपको. सर्च देखना. नहीं, वो लुक फॉर है. लुक अप टू. देखिए उसका उलट है. लुक डाउन अपॉन का उलट है. ऊपर तो देखना, लेकिन किस बात के लिए? फॉर एग्जाम्पल एक आपका दोस्त है या आपका बड़ा भाई जिसने इम्तिहान पास कर लिया. नो, यू लुक अप टू हिम As an influencer. as a source. He is source of inspiration for you. Okay, he might be of some certain help, लेकिन आप लुक अप टू करते हैं कि उससे उम्मीद रखते हैं किसी चीज की, किसी बात की, किसी हेल्प की. ओके, फर्स्ट मीनिंग है टू गेट इंस्पायर्ड बाय समबडी, एंड सेकंड इज एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम समबडी. आप समझते हैं कि ये मुझे कभी, मैं आई लुक अप टू हिम, कि मैं इससे हो सकता है मुझे कभी मदद मिल जाए. या यू गेट इंस्पायर्ड बाय समबडी. आई लुक अप व्हेनेवर आई एम इन ट्रबल. आई लुक अप टू माय ब्रदर हु पास एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द सेकंड अटेम्प्ट. ठीक है, तो एज अ सोर्स अंडरस्टैंड. ओके, ड्रेरी. डल. ड्रेरी का मतलब है फीका. डलनेस भी कहा जा सकता है, कि डल का मतलब कुछ और है. ओके, जैसे खरबूजा है, उसके लिए हम कॉमनली यूज करते हैं ड्रेरी. फल जो होता है, यू एक्सपेक्ट कि ये आम बहुत मीठा होगा, या खरबूजा कॉमनली हम कहते हैं मीठा है, लेकिन वो फीका निकलता है, हम कहते हैं ड्रेरी. इस तरह से जोक, आपको दोस्त कहता है कि आपको अच्छा जोक सुनाने लगा, आप सारे अटेंटिव हो जाएंगे. आप कहेंगे यार, आखिर में कहेंगे ये जोक सुनाया तुमने, ये तो हमने दफा सुना, ये इसमें हंसने वाली बात ही कोई नहीं. तो दैट जोक इज ड्रेरी. तो अगर आप चाहते हैं किसी महफिल में, फॉर एग्जाम्पल किसी महफिल में आप सेंट्रल पर्सन ऑफ महफिल बने, तो फिर आपको ड्रेरी जोक्स नहीं याद करनी चाहिए. ओके, आपके पास फ्लेवर होना चाहिए. ओके, तो ये ड्रेरी का मतलब है. तो ड्रेरी को वी कैन यूज इन मेनी वेज, इन मेनी एक्सप्रेशन. जहाँ पे भी डलनेस, जैसे इन्होंने कहा, उसका एहसास हो, जब भी फीकापन आए, हम उसे कहते हैं ड्रेरी. ओके, सो हम इसे इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं इंसिपिड. कॉमनली इंसिपिड इसका सिनोनिम है. ओके, मैंने अभी जितने लिखे वो सिनोनिम्स लिखे हैं. ओके, सो ड्रेरी इज एडजेक्टिव, ड्रेरी इज अ वर्ब, लुक अप इज अ वर्ब, द वर्ब, स्पेलिंग इज एडजेक्टिव, फोटो इज वर्ब, फ्रॉड इज वर्ब. ओके, इंसिपिड. इंसिपिड का भी मतलब है फीकापन, मजा नहीं मिला. इंसिपिड है, फॉर एग्जाम्पल आप एक ही गाने को बार बार सुने, जहाँ पे थोड़ा सा इंसिपिड डिफरेंट फ्रॉम ड्रेरी, क्योंकि ड्रेरी हम कहते हैं टेस्ट के साथ है. जैसे मैंने कोई चीज खाई तो कहते हैं ड्रेरी.
राइट। तो इंसिपिड है कि मैं एक ही काम को बार बार करता हूँ, तो वो मेरे लिए काम इंसिपिड हो जाएगा। इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, uninteresting। हाँ, मेरे लिए अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा, एक रूटीन हो जाएगी, मेरा दिमाग कहीं और है और मैं कर कुछ रहा हूँ। ओके, मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रही मेरी। हालांकि कोई नया शख्स आएगा कहेगा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू डू दिस वर्क, मैं कहूँगा अच्छा यार तुम कर दो, मैं अब इतना कर चुका हूँ कि मैं थक गया हूँ। हाँ, मैंने आइसक्रीम इतनी खाई है कि अब मुझे देखें, अगर आपको चॉकलेट बहुत पसंद है तो आप उसको 5 कप खा लेंगे, तो छठे कप पे कहेंगे, आप कहेंगे यार अब मेरा दिल नहीं कर रहा। तो जब दिल नहीं कर रहा होगा तो आपको इंसिपिड हो जाएगी चॉकलेट। तो पहले जो था आपकी जो टेस्ट बर्ड थी वो एक्टिव थी, वो डिमांडिंग थी, आप उसको एंजॉय कर रहे थे आपके सेंसेस, राइट। सो ए टाइम केम व्हेन सेंसेस बिकेम डल, ओके, अनरिस्पॉन्सिव। वो जो एक्साइटमेंट है एलिमेंट वो खत्म हो गया उसके अंदर से। जब एक्साइटमेंट का एलिमेंट खत्म हो जाएगा तो इंसिपिड हो जाएगी चीज, राइट। वो जो रोजाना की जिंदगी, जैसे बहुत से अमीर लोग हैं, तो कभी आप मिलेंगे ख्वाहिश करेंगे कि मैं किसी झोंपड़ी में रहूं, आप कहेंगे वो नॉनसेंस दिस पर्सन स्पीक। हम ख्वाहिश करते हैं कि ये जैसे इसने महल बनाया है, ये घर लिया है, गाय उस तरह रहे, वो जो उलट कर है, इसलिए कि वो वहां रह रहे के उस रूटीन से थक गया है। बहुत सी फिल्में भी बनी हुई है ना इस मौजू के ऊपर, राइट। हीरो फरार हो जाता है या हीरोइन फरार हो जाती है, वो जंगल में घूमते पास। तो ये इन्हीं मौजूद के ऊपर है कि वो जो एक रूटीन से लोग तंग आ जाते हैं, बहुत कुछ मिला हो। इस तरह से देखिए गरीब लोग भी गुर्बत के इसमें इंसिपिड हो जाते हैं, ठीक है। कोई रोटी ना मिले वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज रोजाना खाते हैं, आज नहीं खाएंगे। हाँ, ये ह्यूमन नेचर के साथ भी है कि आप एक ही काम को बार बार करके उससे उकता जाते हैं। उकताहट का मतलब ये नहीं है कि हम उसे बेजार हो जाए या ना करें, हमारे लिए उसका टेस्ट खत्म हो जाता है, हम वो करेंगे दोबारा। जैसे खवातीन घर में रोटी पकाती है, यू कैन सी दैट वो आज रोटी पका रही है तो दिमाग जहन कहेगी कि मेरा जहन उतर गया हुआ था, क्योंकि वो रोजाना का काम है। अब समझ आ गया? कहते हैं इंसिपिड। या कोई भी आइसक्रीम ज्यादा खा लें आप, गुलाब जामुन, आप 1 दर्जन गुलाब जामुन के बाद आप कहेंगे लो यार 1 दर्जन और खाओ, आप तो बड़े शौक से खाते हैं गुलाब जामुन, आप कहेंगे यार दफा करो इसको गुलाब जामुन को, मैं थक गया हूँ। तो जब आप थकेंगे, बोर हो जाएंगे, तो इंसिपिड हो जाएंगे, ठीक है। तो गुलाब जामुन ज्यादा ना खाया करें, अगर आए तो यहाँ ले आए। तो आपने देखा ये टीवी में भी जैसे वो अजीजी आया होता है, अगर वो रोजाना आएगा, मैं उसको बड़े शौक से देखता हूँ, रोजाना आएगा तो आपको वो आप इंसिपिड हो जाएंगे कि ये क्या यार रोजाना। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद कभी कोई करैक्टर में आता है, कभी कोई करैक्टर होता है उसका, राइट। तो वो जो करैक्टर जो काफी अर्से बाद आया, आपको आएगा, पसंद होगा, तो आप उसको एंजॉय करेंगे। तो अगर आप उसे रोजाना देखेंगे या एक दिन में 5-6 दफा देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। Understand now the meaning of insipid and dreary. It's a very interesting words. Okay, restive. This is a common word. Restive, commonly used word. Strike. Strive. कोशिश करना. चलो उसको भी अलग से strive को अलग से देखते हैं. Restive, हम कहते हैं कि commonly called, for example, Balochistan is the restive province of Pakistan. Very commonly said, जो बड़ा आम सा restive का मतलब है बेचैन. Okay, हम कहते हैं don't be restive, don't be impatient. Okay, impatient भी है. इसके हम क्या कहते हैं? Restless, impatient. Impatient का मतलब थोड़ा सा different, लेकिन सही लग रहा है restless. ये ऐसी चीज जो ऐसा एक जगह, जो ऐसा इलाका जो वोलाटाइल हो, जहाँ पे आए दिन शोरश या कहने रेबेलियस होता रहे, पीपल कीप ऑन डूइंग रेबल, डूइंग मेकिंग अपराइजिंग, जहाँ पे म्यूटनी अपराइजिंग बार बार हो, तो हमसे कहते हैं दीज आर रेस्टिव एरियाज. इसलिए सिमिलरली कहते हैं दीज आर रेस्टिव थॉट्स ऑफ माइंड. हम कहते हैं आप एक जगह क्यों टिक के नहीं बैठते, ये काम करते हैं, तो हम कहते हैं आई एम ए रेस्टिव सोल, राइट. कि मैं एक जगह टूट नहीं सकते, ऐसे मैं नहीं कह रहा कि मैं एक जगह में खड़ा कर दिया यहाँ पे एक जगह के, कहना मूव अराउंड, राइट. तो रेस्टिव सोल है जो एक जगह टिकती नहीं है, जो कभी कुछ कभी कुछ. So don't be restive, be peaceful person, okay. So restive, a restive province, a restive soul, a restive attitude,
रेस्टेड थॉट्स भी रेस्टेड है, ठीक है। कभी आप सीसीएस की क्लास में आ जाएंगे, कभी पीएमएस में चले जाएंगे, कभी कुछ कर रहे होंगे, तो ये में रेस्टलेस। ओके, सो अगर आपको लफ्ज का मतलब पता है तो देन यू कैन यूज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। ओके, डिस्कसिव आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा वाला पता है डिस्कसिव। डिस्कसिव का क्या मतलब है? डिस्कसिव का मतलब है कि राह से हट जाना। डिस्कोर्स होता है। हाँ, आई मीन जो डिस्कोर्स का मतलब है रास्ता, लेकिन जो रास्ते पे आप जा रहे हैं वहां से हट जाना, डाइवर्ज कर देना, डाइवर्ज। डिस्कसिव हम यूज करते हैं कॉमनली, हम कहते हैं कि जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं डिविंग लेक्चर ऑन इंग्लिश, तो मैं इसमें बात करते करते आपको यूएस हिस्ट्री के मतलब बताना शुरू करता हूँ। ओके, दैट वुड बी डिस्कसिव अटैक। जो कभी कभी मैं करता भी हूँ, इधर से उधर निकल के वापस आए। सो डिस्कसिव का मतलब है जिस रास्ते पे आपने जाना है या जा रहे हैं वहां से हट जाना, राइट। जैसे रेसिंग जा रहा है तो उसके अंदर से बहुत से कैनाल निकल रहे हैं, राइट। These are discursive channels. तो रास्ते से हटना इसे कहते हैं डिस्कसिव। तो हम अपनी गुफ्तगू में भी डिस्कसिव हो जाते हैं, अपने थॉट्स में भी डिस्कसिव होते हैं। ओके, सो व्हेन वी डेविएट फ्रॉम द पाथ वी गेट डिस्कसिव। ओके, सो डेविएट, डाइवर्ज करना, डेविएशन, हम कहते हैं डिस्कसिव, डेविएशन, डेविएटिंग। Okay. Incredulity. Incredulity. अच्छा, इनक्रेडिबल की प्रीफ है। हम कहते हैं किसी की बिलीव, किसी पे बिलीव करना, राइट। तो हम कहते हैं कि ये इनक्रेडिबिलिटी जरा ज्यादा वो स्केल वर्ड कह लें, ना कॉमनली इस तरह से कॉमनली यूज नहीं है, लेकिन इनक्रेडिबल होती है कि एक बंदे, एक शख्स की एक ऐसी बात जो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। तो इतना इनक्रेडिबल, इतना वो उसकी बात में इतना वजन है कि हम कहते हैं कि वो उसकी बात इनक्रेडिबिलिटी है, पर्सन खुद इनक्रेडिबिलिटी है, राइट। तो जरा मुश्किल लफ्ज़ मेरा ख्याल है ज़रा स्किल लगते हैं इनक्रेडिबिलिटी। किसी शख्स के अंदर सच्चाई की अहमियत जिसको आप अप्रिशिएट करें उसे कहते हैं इनक्रेडिबिलिटी। एक शख्स अपने करैक्टर से, अपनी बात से ऐसी जगह हासिल करे, ओके, सो वो इनक्रेडिबिलिटी की जगह आ जाती है। तो कह रहे डिसोल्यूट, डिसोल्यूट का मतलब होता है करैक्टरलेस पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो क्राइम करता है, शराब पीता है, हुल्लड़बाजी, हंगामे करता है, ओके, तो हम कहते हैं डिसोल्यूट पर्सन। हम कहते हैं डिसोल्यूट। डिसोल्यूट पर्सन मतलब है करैक्टरलेस। पीपल हु आर करैक्टरलेस आर पीपल हु आर डिविएंट, जो डिविएंट हो। नॉन कंफॉर्मिस्ट निकाल लें। नॉर्म्स है सोसाइटी के, राइट। तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनसे हटने वाला, डिसोल्यूट, ठीक है। तो जो भी डिसोल्यूट पीपल आर वन स्टेप बिफोर बीइंग क्रिमिनल। क्योंकि जब आप कोई शख्स ऐसा है जो डिसोल्यूट सोसाइटी के नॉर्म्स को वायलेट करता है, कॉमनली मोरल प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, तो डिसोल्यूट है द मोरालिटी ऑफ ए पर्सन इज एट स्टेक, और पर्सन कीप ऑन वायलेटिंग मोरालिटी ऑफ सोसाइटी, ओके, आर द कन्फॉर्मिटी ऑफ सोसाइटी, हम कहते हैं डिसोल्यूट। तो डिसोल्यूट कैन बी एक्ट्स भी हो सकते हैं, किसी पर्सन के डिसोल्यूट एक्ट्स हैं, और पर्सन को भी हम डिसोल्यूट कहते हैं, ठीक है। उर्दू में हम जो भी whatever you want to say, क्या कहेंगे उर्दू में इसको, डिसोल्यूट को
एक शख्स जो को बदमाश टाइप जैसे नहीं होते, बदमाश को तो पॉजिटिव मैंने में भी लोग लेते हैं कि लड़ाई शड़ाई करने वाला, लेकिन ये ना बंदा वो है जो क्राइम, जो क्रिमिनल, जो नेगेटिव एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी में इन्वॉल्व है। ओके, दिस ट्रेट दिस ट्रेट एक है डिस्ट्रॉट, हम डिस्ट्रॉय लिखते हैं वो गल है जो ज्यादा एक है रॉट। तो डिस्ट्रॉट है और एक रॉट है, ये तो कॉमनली यूज हो रहे हैं। एब्सेंट ऑफ माइंड डिस्ट्रॉट डिस्ट्रैक्ट वो डिस्ट्रैक्ट कह रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्ट हमने डिस्कसिव वाला लिखा है। ओके, तो ये भी हम कह सकते हैं पीपल हु गेट डिस्ट्रैक्टेड और गेट डिस्कसिव, जो डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर वापस रास्ते से हट जाते हैं। ठीक है, तो वो उस मैंने में तो यूज हो सकता है। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट होता है जहनी तवाज़ुन जिस बंदे का खो दे, गुस्से की वजह से या कोई नशे की चीज की वजह से वो डिस्ट्रॉट हो जाए, पर्सन गेट डिस्ट्रॉट। एब्सेंट ऑफ माइंड नहीं, अफसर नहीं, ही गेट वो अपना सेंस लूज करना है, मेंटली वो पागलपन का शिकार हो, जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉट। जैसे एंगर है, एक्सट्रीम एंगर कैन मेक यू डिस्ट्रॉट। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा हिज़यान जैसे हो जाए, गुस्सा बेतहाशा हो, एंगर हो, जोश जज्बा बहुत ज्यादा हो, तो यू कैन बी कॉल्ड डिस्ट्रॉट। इस तरह से वो जो लोग कभी बहुत ड्रिंक करते हैं शराब, तो दे आल्सो गेट डिस्ट्रॉट, वो भी डिस्ट्रॉट कैटेगरी में आ जाते हैं कि अब उन्हें होशो आवाज नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, दे गेट डिस्ट्रॉट। ओके, एंड रॉट रॉट के दो मतलब है। रॉट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड टू नो। रॉट होता है कि जैसे लोहा है, हम लोहे को पीसते हैं, right? तो अब उसमें यह है कि हम कहते हैं जब हमने बहुत लोहा मैंने कि उसको पीसा है लोहे को, तो वो जो उसके अंदर गैप है वो खत्म हो जाएगा और वो आपस में ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर आपने कोई जैसे शिप बनाना है या कोई ऐसी चीज बनानी है, तो आप लोहे को प्रेस करते हैं, कूट कूट के प्रेस करना। ठीक है, तो रॉड का मतलब ये है कि कोई चीज जो कूटी हुई हो बहुत। ओके, तो उसके दो मतलब हो गए, एक तो ये है कि वो वॉर्न हो गया, चीज वॉर्न हो गया, राइट। ओके, वॉर्न कहते हैं वॉर्न आउट, इतना ज्यादा उससे पीसा कि उसके धागे निकल आए। अगर आप कपड़े को धोबी बार बार चटकता है तो ये आल्सो वॉर्न आउट, वो मैल तो निकलेगी लेकिन कपड़े का भी सत्यानाश हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, कुछ तो उसमें धागे नजर आएंगे, राइट, वॉर्न आउट। इस तरह से रॉड है। रॉड भी है कि जब आप बार बार किसी चीज को पीसेंगे, उसके ऊपर मारेंगे उसको, ओके, तो वो कमजोर पड़ेगी, उसकी जो इंटेग्रिटी है वो खत्म होगी, राइट। तो ये हम फिजिकली किसी चीज के लिए यूज करते हैं लिटिल सेंस। लेकिन रॉड का एक पॉजिटिव मतलब ये है पर्सन हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। ठीक है, कि इसने घाट घाट की मार खाई, जगह तो पानी पीना भी है ना, घाट घाट का पानी है वो भी ठीक है, लेकिन घाट घाट की मार खाई हुई, मेरा आई हैव क्रिएटेड दिस सीरियल, घाट घाट की मार खाई, पता नहीं क्या एक्चुअली होगा, लेकिन जगह जगह से वो नाकाम हुआ, कामयाब हुआ, कामयाब नाकाम रहा, तो फिर वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। ओके, तो दो चीजें आ गई रॉड करते हैं, वॉर्न आउट, तबाह, रॉड पर्सन आया कहीं गया हुआ था, 10 माजी में जैसे हम कहानियां पढ़ते हैं कि वो एक सफर पे चला गया, वास्को डी गामा, तो वापस आया 10 साल के बाद, राइट। सो ही वाज इन ए रॉड कंडीशन। ठीक है, कि दाढ़ी पड़ी हुई, बुरा हाल जिस्म का, पाँव से चला नहीं जा रहा, हम कहेंगे हिज रॉड। सफर में इसको खूब पिटाई की है, इसकी कूटा है इसको खूब, राइट, रॉड। लेकिन दूसरा मतलब ये है उसका कि वेल राउंडेड, फिर वो तजर्बा भी उसके पास बड़ा होगा, ही इज रॉड बट वेल राउंडेड। ठीक है, ही इज वॉर्न आउट बट वेल राउंडेड। अगर हम एक ही जुमले में दोनों को इस्तेमाल करें तो वो पिटाई उसकी बड़ी हुई है जिंदगी में,
लेकिन उस जैसे तजर्बे का बंदा भी कोई नहीं। ठीक है, तो ये भी रॉट के मतलब में हम बोल। ओके, बनाए इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस फाइव मैसेज देते हैं एरर से, ये आपको आना चाहिए। ओके, इक्वल डिस्टेंस का क्या मतलब है? हाँ, इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन कुछ और डिस्क्राइब करें इसको। दो पोल्स हैं एंड यू आर स्टैंडिंग इक्वल डिस्टेंस। क्या ऐसी जगह खड़े हैं जहां से दोनों का फासला बराबर है? बैलेंस। हाँ, बैलेंस भी कह सकते हैं, लेकिन इक्वल डिस्टेंस का मतलब हम फासला मैयर कर रहे हैं। बैलेंस का मतलब हम उसको वे कर रहे हैं, राइट? इसे कहते हैं वे अप। वे अप सुना नहीं आपने? बात कहते हैं because we are इसका मतलब राजन, क्योंकि ये तो कॉमनली फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो फ्रेजल वर्ब्स कॉमनली मे नॉट बी आस्क्ड कैमरे में। आपको आनी चाहिए वैसे इंग्लिश में, बिकॉज ऑफ योर एक्सप्रेशन वुड बी इम्प्रूव, लेकिन अभी हम जरा उसको फोकस किए हुए हैं जो एग्जाम होगा आपका। ओके, सो इक्वल डिस्टेंस का मतलब है equal of equal distance. A person standing at a position where two poles are of equal distance. क्या मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, बात एक ही है। इक्वली मेजरेबल। हाँ, equally both distances are equally measurable. Okay, उसे कहते हैं equal distance. Okay. Okay, poise. Poise. P-O-I-S-E. Poise के दो मतलब हैं। एक है हम कहते हैं जो जनरल पॉइंट्स ऑफ इंप्रेसिव, कि आपकी जो जनरल लुक है, आपका क्लास में आना, बैठना या चलना फिरना, जैसे क्लास में आप एंटर हुए, दैट वाज इंप्रेसिव, राइट? जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे ज्यादा इसे हम कहते हैं ट्राइड, ओके, या इंसिपिड आर ड्रेडिंग टर्म्स। ये इडियम है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट, हर एक ने को याद होगा ये, राइट? सो बिकॉज़ इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड, हम कहते हैं इट्स क्वाइट इंसिपिड। कोई नहीं बात करो, ये तो फीका जुमला आपने थ्रो किया है मेरी तरफ, गाड़ी तो उसी को हम कहते हैं ट्राइड। तो जब हम किसी जुमले के मतलब कहें, देखिए हमने कहा था, डेली कहा था फल फ्रूट, इंसिपिड के लिए हमने क्या कहा था, किस चीज के लिए? मीठा बार बार खाना इंसिपिड हो जाएगा आपके लिए। हाँ, वो क्योंकि उसका फ्लेवर खत्म हो गया। ठीक है, आपके जो टेस्ट बर्ड है उन्होंने उसको फ्लेवर को खत्म कर दिया। 3 घंटे की मूवी आप देख लेंगे तो आपको कहीं 4 घंटे की देखेंगे, यार बंद करो, मैंने काफी देख लिया। यू आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच। ठीक है, तो इसलिए आप 1.5 घंटे की जो इंग्लिश मूवीज है 1.5 घंटे की है, पाकिस्तानी मूवी 3 घंटे की होती है, राइट? उसमें गाने वाने डाल के वो चला देना। सो वो अब कहते हैं फीका, अब मुझे इतना मैंने इसको वो लिया, हम खत्म करो इसे। ओके, ये है ट्राइट। ट्राइट है जो हम अल्फाज कॉमनली यूज करते हैं, ये भी उसी कैटेगरी का लफ्ज़ है, उसी का सिनोनिम मिल रहा है उनके, राइट? लेकिन ट्राइट है जो हम कॉमनली यूज, कॉमन प्लेस जिसे हम कहते हैं ना, दीज वर्ड्स आर पिटा हुआ लफ्ज़। ओके, ट्राइट रिमार्क्स, जैसे हम कहते हैं थैंक यू इज आल्सो ट्राइट रिमार्क्स। ओके, गुड मॉर्निंग इज आल्सो ट्राइट। हालांकि ये हम एक दूसरे को इज्जत के साथ कहते हैं, ओके, प्लेजेंटरीज में एक्सचेंज करते हैं, लेकिन इज दैट राइट? आपकी ने जुबानी याद किया हुआ, आप आते जाते दूसरे हाल कह रहे हैं वेरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, राइट? हालांकि आपका एक्सक्यूज मी हो सकता है मतलब ना हो दिल से, लेकिन हम कह रहे हैं एक्सक्यूज मी, तो ये राइट है। सुनने वाले को भी पता है कि ये भी ऐसे कह रहा है, मुंह से दिल से कह रहा है, ये राइट। सुनने वाला और बोलने वाला दोनों बगैर सोचे समझे एक मैकेनिज्म में चल रहे हैं। ट्राइट रिमार्क्स, ट्राइट वर्ड्स, ट्राइट सेंटेंसेस, ट्राइट इडियम्स, many things you can find. ये कॉमन प्लेस भी हम कहते हैं इसको, कॉमन प्लेस का ये मतलब है ट्राइट। ओके, सो ये एक ही कैटेगरी की लफ्ज़ है। तो कहाँ थे हम? पॉइज। ओके, सो पॉइज है जर्नल इंप्रेशन।
ओके, एक पॉइस का मतलब है जर्नल इंप्रेशन। जनरली मैंने क्या परसीव किया आपसे, योर पॉइस वाज इंप्रेसिव। जैसे हम कहते हैं इंटरव्यू में जब जाएं तो ऐसे चले, ऐसे बैठे, राइट? तो अब आप जाएंगे तो एग्जामिनर नीचे वो फाइल पड़ा होगा आपकी, तो आप कहेंगे कि काश ये देखे तो सही मैं एंटर कैसे हुआ हूँ। एक अफसर एंटर हुआ आखिर में, राइट? तो वह हसल लिए ही वापस आ जाएंगे आप एग्जामिनेशन इंटरव्यू हॉल से। ओके, पॉइस, ठीक है। एग्जामिनर को पता चलता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द नॉट द लास्ट इंप्रेशन। वो इस चक्कर में बैठा है कि पहले इंप्रेशन से नहीं इंप्रेस होना है क्योंकि ये मुझे धोखा देगा। पहला इंप्रेशन जो है वो धोखे वाला इंप्रेशन है। सो आप उसको कैश करना चाह रहे हैं, तो एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड। सेकंड है पॉइंट है पोजीशन। पोजीशन नहीं, पोजीशन कहाँ कैसे बैठा हुआ, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बर्ड, ए कार इज पॉइज्ड ऑन हिल, ओके? या कोई भी चीज ऐसी जगह से जिंदा है, वो किसी दरख्त में ऐसी जगह से बैठा हुआ है, ओके? तो हम कहते हैं कि द बर्ड इज पॉइज्ड इन द ट्री इन अ वे दैट व्हाटएवर, ओके? कि आपको ऐसा लगा कि वो ये चिड़िया नहीं है, ये अकाब है, राइट? ओके, सो पॉइज का मतलब है इस तरह से बैठना, ओके? तो उसको भी हम पॉइज्ड कहते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पाकिस्तान इज ज्योग्राफिकली पॉइज्ड सिग्निफिकेंटली, ये लिख लें। देखना पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तान इज पॉइज्ड इन अ वे दैट इज impressive, that is unavoidable for the regional players. Okay, Pakistan's position geographically is poised in such a way that it is unavoidable for the regional players to ignore Pakistan. ठीक है, इस तरह से कहते हैं स्ट्रेटेजिकली इस तरह से प्लेस्ड है। लेकिन तो बार बार यूज करना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट से, हम उसकी जगह पॉइज वर्ड भी यूज कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव। ओके, बिकॉज स्ट्रेटेजिक इज ट्राइड वर्ड, बार बार लिखेंगे यार ये क्या, एक ही लफ्ज को पकड़ा हुआ है। Okay, subaltern is also an interesting word. Subaltern. Yeah, you got the idea what is subaltern. देखिए subaltern क्या होता है? Lower scale items are lower on the ऐसा है लेकिन कुछ और मतलब है इसका। इसका मतलब है चेला, inferior person. ठीक है? So no doubt you try to judge from subaltern होता क्या है? Subaltern I mean you can imagine, then you can understand the meaning of the word. सबल्टन क्या होता है? एक बड़ा पलंग है और एक छोटा पलंग है, राइट? तो जो लोग वेस्ट के अंदर चूंकि जगह कम होती है, तो वो रात जब सोने लगते हैं तो छोटे पलंग को बड़े पलंग के नीचे धकेल देते हैं, ठीक है? तो वो जो छोटा पलंग है उसे सब अल्टर्न कहते हैं, ठीक है? क्योंकि हम उसको दिन में उसके ऊपर बैठ रहे हैं, उसको सोफे के तौर पर यूज कर रहे हैं, ओके? लेकिन अब रात को हमने पलंग पे सोना है, तो वो जो सोफे के तौर पर छोटा पलंग था जिसको सोफे के बैठने के यूज करते हैं, उसको हम नीचे घसीट देते हैं, ओके? तो वो सब अल्टर्न है, ओके? तो जो छोटा पलंग है उसे कहते हैं सब अल्टर्न। उसका मतलब है जो छोटा आदमी होगा किसी बड़े आदमी के साथ, या वैसे जो सबॉर्डिनेट है, हु इज अ फॉलोअर, ऐसा फॉलोअर जो खुशामदी फॉलोअर है, ओके? ठीक है, जो किसी की खुशामद करने वाला फॉलोअर है उसे कहते हैं सब अल्टर्न। इंफीरियर, ओके? सो इस तरह से इसका मतलब है, लेकिन इंफीरियर भी हो सकता है subordinate, secondary to somebody. Stand still with stand still. खवातीन को तो आना चाहिए, खवातीन को ये उसका मतलब जरूर आना चाहिए। स्टैंड स्टिल। डेकोरेट से सरफेस को डेकोरेट करना है। डेकोरेट करना है कि किस चीज को डेकोरेट करना? फ्लोर सरफेस को, सरफेस को किसी को, जैसे फ्लोर को किसी चीज को उसका भी कर सकते हैं डेकोरेट, लेकिन जो कपड़े के दुपट्टे का जो कोना है उसके साथ झालर लगाना, ठीक है? जैसे आप लोगों ने एक बॉर्डर है, उसके साथ
लहदा से झालर लहदा से लगाई जाती है, कोई भी चीज लगाई जा सकती है, मोती लगा लें, राइट, कपड़े के साथ, चादर के साथ। माजी में ये वेरी कॉमन, अब तो जरा फैशन ही चेंज हो गया, उसे कहते हैं स्टेंसिल वेस्ट, डेकोरेट। सर अभी से इको करना देते हैं। देखो क्या कहते हैं, ठीक है, डेकोरेट। स्टेंसिल भी वेरी कॉमनली यूज, अच्छा कॉमनली यूज है, वैसे हम कहते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे है आपका, तो शुड स्टेंसिल इट विद इंग्लिश एक्सप्रेशन। Okay, do not leave your essay trite or insipid. Decorate, stencil your essay with English expression, with idioms. Right? तो एस एग्जामिनर में कहना हर एक में ये लिखे हुए 4 लफ्ज सारे, तो वो उसके लिए इंसिपिड हो जाएगा, कैसे फेंक दो। But we will stencil your essay with new ideas, with creativity. Okay, so you will grasp the attention of the examiner. ठीक है, ये देखिए इसमें मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हैं, हालांकि उन बेचारों ने भी अच्छे लिखे होंगे, लेकिन वो इंसिपिड की कैटेगरी में आ गए, ट्राइट की कैटेगरी में आ गए, एग्जामिनर के लिए इतने इंटरेस्टिंग नहीं रहे। ओके, तो उसने कहा कि स्टेंसिल विद, एक और इससे मिलता जुलता है, वो जरा पहले हम वो कर लेते हैं, lard with. Okay, do not lard your essay with in the English expressions. कुछ ऐसे expressions हैं lard with. Okay, lard होता है वेस्ट में एक बर्गर होता है जो, राइट, सो वो क्या करते हैं, बर्गर को बनाते हैं, उसमें चीज रखी, उसमें क्या कहते हैं कि गोश्त, स्टेक्स रखा, कुछ चर्बी रखी, उसका वॉल्यूम बन गया, राइट, तो उसको पैक करके दे दिया। मैंने ईट इट तो पैक कर देगा, इसमें तो मैंने काम की चीजें भी और अदरवाइज नहीं, लेकिन चर्बी खाई जाती है वेस्ट के अंदर, ये ना कहें कि वो बुरी है, क्योंकि वेस्ट जैसे रशिया है उसमें तो चर्बी खाई जाती है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ की जो टेम्परेचर है उसको बर्दाश्त करने के लिए वो फैट ले खाते हैं, ठीक है। तो लार्ड विद का मतलब है कि वो चीज ऐड करना जो एक्चुअली उसका कंपोनेंट नहीं है होना चाहिए, ठीक है। लॉर्ड विद का मतलब है चर्बी इज नॉट कॉमनली पार्ट ऑफ योर बर्गर। अगर आप बर्गर खाने जाएंगे तो आप कहेंगे इसमें न्यूट्रिशियस चीजें होनी चाहिए या टेस्टी चीजें होनी चाहिए, ठीक है, बट शुड नॉट बी लॉर्डेड विद अनरिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स या अनरिक्वायर्ड फूड आइटम्स, राइट। तो लॉर्डेड होता है कि अननेसेसरीली आप आइडियाज ऐड करें टू मेक वॉल्यूम ऑफ समथिंग। मैंने आपको बता दिया लॉर्डेड का, ठीक है, कि चर्बी ऐड करना उस बर्गर के अंदर या खाने के अंदर ताकि उसका साइज बने, राइट। तो अदरवाइज हम लॉर्डेड कहते हैं कि अननेसेसरी मटेरियल ऐड करना, विच शुड बी अब्रिज्ड, ओके, विच शुड बी अब्रिज्ड, कि हम उसको अब्रिज्ड करना चाहिए, निकाल दे उसको, रिमूव करें, ओके। कहते हैं जो ऐसे शुड बी अब्रिज्ड, because when you repeat ideas, you are loading your essay with those ideas. You do not load your essay with repetitive ideas. ठीक है, क्या ऊपर लिख दिया आइडिया, फिर आगे जाके उसको फिर नीचे कह दिया ताकि जरा इसकी शीट्स ज्यादा लगे, एग्जाम में इम्प्रेस हो, ठीक है। फिर अननेसेसरी कोटेशन ऐड करना, ठीक है, ये है लॉर्ड। Okay, do not lard with your answers with unnecessary sketches or idioms or quotations, ठीक है। तो इससे ये एग्जामिनर ऑफेंड होता है, कहता है मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने तो ये बर्गर मांगा ही नहीं था जो ये दे रहे हैं, मुझे तो कहा था कि इसमें चिकन होगा तो अब इसमें से चर्बी निकल रही है सारी, तो इसको सिर्फ वॉल्यूम बनाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए कि हमने पैक कर दिया है, गॉट एन आइडिया, कहते हैं लॉर्ड। ओके, Plump. सर लार्ड विद को अनसॉलिसिटेड भी कहते हैं। अनसॉलिसिटेड नहीं, अनसॉलिसिटेड होता है कि बगैर मांगे, जैसे हम कहते हैं अनसॉलिसिटेड रिक्वेस्ट, अनसॉलिसिटेड हेल्प, डू नॉट गिव अनसॉलिसिटेड हेल्प टू एनीबॉडी, राइट। तो अनसॉलिसिटेड होती है जो बगैर मांगे, बगैर डिमांड किए चीज मिले, ओके। मान की जगह आप लिखें लव पहले, यहाँ चीज पहले आप
लम्प का क्या मतलब है? ये उससे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड है लम्प। लम्प तो बड़ा आसान सा मतलब है, लटकाना, स्टैगर। ओके, द मीन सॉरी लिम्प है। लम्प का मतलब है स्वेलिंग, गोमड़ जैसे नहीं कहते हम, इस जगह से सूजन हो जाए हम कहते हैं लम्प, थोड़ा लम्प हम भी कहते हैं, लेकिन लम्प है। तो लम्प है सोसाइटी के अंदर वो लोग हु आर नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे अनवांटेड कैरेक्टर इन सोसाइटी जो सोसाइटी का फेस एग्ली करें, देयर कॉल्ड लम्प। ओके, तो है रिक्वायर्ड। आपका कभी सर पे किसी ने पत्थर मारा? सर पे पत्थर लगे तो वो जो सूज जाता है उसे लम्प कहते हैं। दैट इज हाउ अग्री इट इज। बहुत से कार्टून बने होते हैं बड़े लम्प के साथ, ऐसी जैसे स्पीड ब्रेकर कहते हैं कि आपके सर पे तो स्पीड ब्रेकर बने। तो ये है जो सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जो रिक्वायर्ड ना हो, आप कहेंगे ये फजूल आदमी है, ना गली की नुक्कड़ पे खड़ा रहता है, तो दीज आर लम्प्स ऑफ सोसाइटी, राइट। सो इससे लिटरल मीनिंग है और एक फिगरेटिव मीनिंग। तो कि हम कह रहे हैं रिक्वायर्ड, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है रिक्वायर्ड। अनस्टेबल सर या वाइब्रेटिव अनस्टेबल। नहीं, अनस्टेबल का हम कुछ और मतलब निकाला हुआ, फॉन्ट वो भी कर देते हैं। रिक्वायर का मतलब है जैसे गन है, तो जब हम उसको हम उसका वो क्या कहते हैं घोड़ा वापस लगाते हैं ताकि अगली उसने फायर करना है, तो वी रिक्वायर इट, उसका स्प्रिंग होता है उसके अंदर, हम उसे रिक्वायर करते हैं एंड देन वी रिलीज इट, तो वो गोली को फेंकता है। ओके, सो हम रिक्वायर को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बहुत ही मुश्किल में फंस गए एंड देन आई रिक्वायर्ड, मैं वापस आया वहां से। ओके, आप किसी मुश्किल में फंसे एंड देन यू रिक्वायर, सो यू लूज योर रिक्वायरिंग एबिलिटी, ओके, देन यू फॉल इन ट्रबल। अगर आपके पास रिक्वायरिंग एबिलिटी नहीं है वापस नॉर्मल होने की, जिसे हम कहते हैं रेजिलिएंट, ओके, सो इफ यू आर नॉट रेजिलिएंट देन यू सफर इन दिस वर्ल्ड। If you lose your requiring ability, then you mean you suffer. आप उसका शिकार होंगे किसी भी चीज का। अगर आप कोई काम करने निकले हैं तो you should be requiring ability। अब वापस आए वहां से। Regain momentum. Regain momentum. And regain your previous state। Okay? तो इससे रिलेटेड वो लोग जैसे कहते हैं रिलैप्स। ये पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है? ओके? तो रिक्वायर्ड है, हम इसे कह सकते हैं कि ये रेजिलियंस क्या है यहाँ से? वन रेजिलियंस। ओके, रिक्वायर्ड उसके वहां से वापस आना, इस जगह से गिर के दोबारा खड़ा होना, उसे कहते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, तो रेजिलियंट भी है कि व्हेन यू फेस अ ट्रबल और मिजरी और एनी प्रॉब्लम, you get stressed, you get defeated, but after the misery is over, you get back to normal. ठीक है, समझ आना? Resilient है, समझ आना? Okay, the next is imposture. Misrepresentation of the किसी का रूप डालना, दोबारा क्या? किसी और का रूप डालना। हाँ, किसी को फेन भी हो सकता है, फेन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कि एक्चुअली आप कुछ और हैं और आप स्टूडेंट पुलिस के वर्दी पहन के फिर रहे हैं, समझा? तो आप कह रहे हैं कि इम्पोस्टर जिसे हम कहते हैं, तो वो ये है कि आप एक्चुअली है नहीं जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोस्टर भी कहते हैं उसे, इम्पोस्टर। फेन का मतलब ये है धोखा देना। फेन का मतलब है धोखा देना किसी को, फेक। ओके, फेक इज आल्सो फेन। ओके, याद रख देता हूँ।
कॉमनली यूज के जैसे कोई बंदा झूठ मूठ बीमार बन जाता है कि वैसे आज मैं बीमार हूँ, आज मैं कॉलेज या स्कूल या ऑफिस नहीं आ सकता। ओके, सो समबॉडी इज फेलिंग इलनेस, यू डोंट फेल इलनेस। ओके, आप झूठ मूठ के बीमार ना बने। ओके, so don't feign illness. Okay, so feign is also the commonly used. Feign is not fake. Okay, so falter का मतलब मैंने आपको बताया ना क्या क्या। falter के दो मतलब, एक तो लड़खड़ाना है, ओके, और दूसरा अपनी बात से पीछे हटना। ठीक है, लड़खड़ाना, लड़खड़ाने का मतलब है when you are walking, तो आप उस पर लड़खड़ाते हैं किसी पत्थर के जरिए। पत्थर आपको रोकता है किसी काम से, आपकी चलने से रोकता है जो, ओके, वो आप लड़खड़ाते हैं। The second point falter is you make a promise, okay, and then you deviate from it. Okay. So जब आप you do not respect your own words, so it means you have falter in this account. आपने अपनी ही बात को जुटला दिया, अपनी बात से पीछे हट गए, उसे कहते हैं falter। तो वादे के साथ falter का ताल्लुक है कॉमनली। जब हम वादा करें तो हमें पूरा करना चाहिए, अदरवाइज falter। ओके, एंड रिलैप्स, एक है रिलैप्स। What is the meaning of relapse? जुर्म की दुनिया में, नेगेटिव में वापस चल जाना, दोबारा बीमार हो जाना। रिलैप्स का मतलब नेगेटिव के साथ। ओके, तो जो क्रिमिनल्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन सोसाइटी करती है, मतलब जेल इज आल्सो मींस अ रिहेबिलिटेशन या रिहेबिलिटेशन सेंटर है। बट मेनी क्रिमिनल्स रिलैप्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। ठीक है, वो कहते हैं ये शरीफ लोगों की जिंदगी में तो मेरा कोई काम, दुनिया में भी मेरे काम, सुबह जाते हैं शाम घर आ जाते हैं, कोई लाइफ है, थ्रिल नहीं है इसके अंदर, हंगामा नहीं है, एडवेंचर नहीं है, राइट। सो दे रिलैप्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम। ठीक है, तो बाहर के मुल्कों में वो कहते हैं कि अच्छा फिर आपको बेहतर जगह पे लेके चलते हैं जहाँ आप अंदर ही रहें, वहाँ बैठे हो, क्योंकि ये नामल दुनिया आपके लिए नहीं। आप दुनिया को बदलने के बजाय हम फिर आपको बदलते हैं, ये इधर भी हो सकता है ना। ठीक है, लैप्स का क्या मतलब है? गलती करना, लैप्सेस। ओके, लैप्स है। एक मैंने पहले भी एक इंडिस्क्रिप्शन जैसे हमने कहा था, तो लैप्स से बड़ी गलती है। इंग्लिश में छोटी ऐसे मिस्टेक जो आप नहीं करनी चाहिए थी, जो सोशल लाइफ में है, लेकिन लैप्स एक बड़ी गलती है। ओके, हम बात कर लैप्स को टाइम के साथ भी जोड़ते हैं कि लैप्स ऑफ टाइम। ओके, लेकिन लैप्स एक्चुअली है किसी चीज का गिरना, नीचे गिरना, गलती करना। ओवरसाइट, ये भी सिद्ध मतलब है। ओवरसाइट के दो मतलब है। एक है टू ओवरसी फॉर मैनेजमेंट। ओके, फॉर द मैनेजर्स ओवरसाइट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वर्क। एक प्रोजेक्ट अगर आपने रन करना है तो देयर शुड बी अ मैनेजर who should oversee or should give his oversight। ठीक है ना, कि वो देखे कि क्या हो रहा है। लेकिन ओवरसाइट का एक मतलब ये भी है कि चूक जाना, गलती करना, commit a mistake, लेकिन छोटी गलती करना। ओवरसाइट है कि ये मैं पढ़ रहा था और ये जो लफ्ज मिस हो गया, that was my oversight, कि मैं इसके ऊपर से जल्दी से गुजर गया और मैंने इसको पिक नहीं किया, and you think this is important, so that is my oversight। तो ये नहीं कि आई एम बैड रीडर, नॉट ए कीन रीडर, या कि मैं गलती से मैं इसको ओवरलुक कर गया। तो द थिंग विच इज ओवरलुक इनएडवर्टेंटली वी कॉल इट ओवरसाइट। ठीक है, जरा एक वर्ड कह लेते हैं, इनएडवर्टेंट। और एक और है एडवर्टेंट, किसी का लगा लें। तो क्या मतलब है इनएडवर्टेंट? इनएडवर्टेंट का मतलब है नॉट डेलिब्रेट, इनडेलिब्रेट, जानबूझकर नहीं किया।
और एडवर्टेंट का मतलब है डेलिब्रेट. इट वाज अ डेलिब्रेट मिस्टेक. You did it deliberately. You did it advertently. तो आप कहेंगे repeat करेंगे, no, I did it inadvertently. It was my inadvertent mistake. It was my indeliberate mistake. मैंने जानबूझ के नहीं की. देखिए मैं मासूम आदमी हूँ, गलती हो जाती है. आपको मुझे कहेगा नहीं ये तो रोजाना कर रहे होते हो, तो जानबूझ के करते हो. If you would say no, it is my oversight. ठीक है कि मैं वैसे बहुत मुख्तार हूँ, लेकिन इस दफा इस काम के ऊपर से मैं जल्दी से गुजर गया. मैं इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी. मेरा ख्याल है ये ज्यादा अहम नहीं था, लेकिन आपके नजदीक ये बहुत अहम था. दैट वाज माय ओवरसाइट. गेटिंग पॉइंट? ओके. काफी हो गया. अच्छा, जो टाइम के लिए यूज करते हैं ना, हम उसे कहते हैं इलैप्स. हाँ, टाइम के स्पेसिफिक जगह बगैर गुजर गया, हम उसके लिए 2 वीक्स इलैप्स, तो हम उसके लिए इलैप्स यूज करते हैं. कुछ और ऐसा वर्ड जो रह गया हो. अब्रिज्ड. अब्रिज्ड का मतलब कंसाइज करना, कम करना. हाँ, करना वो जो लॉर्ड विद है उसको खत्म करना. अननेसेसरी मटेरियल को निकालना, उसे कहते हैं अब्रिज. एक्सपर्गेट एक और लफ्ज है. एक्सपर्गेट ये जरूर आना चाहिए आपको. एक्सपर्गेट का मतलब है कैसे किताब में कोई, जैसे पाकिस्तान की किसी बुक के अंदर टू नेशन थ्योरी के खिलाफ कुछ मवाद हो या इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, तो यू हैव टू एक्सपर्गेट इट. राइट. तो ये जो फिल्म देखते हैं, जो क्या कहते हैं वो, कि फिल्म को हमने देखा सेंसर बोर्ड, तो सेंसर बोर्ड एक्सपर्गेट सर्टेन सीन्स. ओके. तो जो टेक्स्ट बोर्ड है दैट एक्सपर्गेट बुक्स. इस बुक में जो काबिल एतराज मवाद है कि ये टू नेशन थ्योरी के खिलाफ है, ये आइडियोलॉजी के खिलाफ है, नेशनलिज्म के खिलाफ, उसको हम निकालें, उसे कहते हैं एक्सपर्गेट. ठीक है. काबिल एतराज मवाद को किताब से या फिल्म से, मूवी से निकालना, उसे कहते हैं एक्सपर्गेट. और अब्रिज का मतलब ये होता है कि अननेसेसरी चीजों को निकालना. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अब्रिज्ड, कहते हैं अब्रिज एडिशन, कि इसमें जो रेपिटेटिव थॉट थी वो हमने निकाली है. तो रेपिटेटिव थॉट में नॉट बी अनडिजायरेबल, लेकिन रेपिटेटिव थॉट से उसकी लेंथ खामखा इंक्रीज हो गई. हमने रेपिटेटिव आइडियाज को निकाल के अब्रिज्ड एडिशन बनाया है. दिस इज वेरी कंसाइज. ओके. सो अब्रिज्ड का मतलब है कंसाइज, टू द पॉइंट. ओके. तो एक्सपर्गेट का मतलब है रिमूवल ऑफ अननेसेसरी, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल और ऑब्नॉक्शियस मटेरियल. ठीक है. एक्सपर्गेट करना, सेंसर करना किसी चीज को. ओके. सो इनक्रेडिबिलिटी है, इनक्रेडिबलस से निकला जहां लिख दिया बिलीवेबिलिटी. कोई और लफ्ज आपके ख्याल में हो? अच्छा, एक लफ्ज ये लगे प्लम. प्लम के 2 मतलब है. प्लम क्या होता है कि एक जैसे ठेकेदार होता है ना, राइट. सो वो आप कहेंगे कि ये तालाब कितना गहरा है, तो उसके पास एक चीज होती है, उसके ऊपर धागा लगाया होता है, तो वो उसको पानी में डालता है तालाब के, तो देखता है जितनी डोरी रह गई तो वो नापता है कि ये इतना है. तो वो जो नीचे वो जो आला होता है जो टच करे हैवी, उसे कहते हैं प्लम. सो प्लम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ ए पूल. पानी का जो तालाब है, ओके, उसकी जो डेप्थ जानने के लिए जो आला डाला जाता है उसको कहते हैं प्लम. ठीक है. तो ये तो हो गया कि हमने डेप्थ के लिए यूज किया, तो ये तो हो गया लिटरल मीनिंग. ओके. सो प्लम हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ योर आइडियाज. किसी थ्योरी की जो एक्सटेंट है उसका हम यूज करते हैं प्लम.
For example, you cannot understand the crisis hitting Pakistan unless you live in Pakistan. ठीक है, जब तक पाकिस्तान में ना रहे, बाहर से बैठ के नहीं कह सकते, okay? So in order to plumb the depth of the crisis, you have to land in Pakistan. जब okay, अगर आपको पाकिस्तान की political crisis की plumb check करनी है, उसकी depth क्या है? एक है ना severity, उसी का alternative है कि जी how can you estimate the severity of the situation? एक है to how can you understand the plumb of the crisis? ठीक है कि उसकी कितनी depth है, तो उसके लिए फिर आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, ओके? दिस इज कॉल्ड प्लम। और कुछ लफ्ज ऐसा इसमें से ढूंढते हैं कुछ और ऐसा, ओके? एनीवे वी कैन हमें ऐसे अल्फाज जिसके अंदर से दूसरे अल्फाज निकाल सकते हैं। तो आप थके कुछ फॉल्टर में अब होता है लड़खड़ाना, राइट? तो स्टैमरिंग भी बोलते हुए जो लड़खड़ाते हैं, दैट इज स्टैमरिंग। हाँ नहीं, फॉल्टर वो है कि जब हम चलते हुए लड़खड़ाए। फॉल्टर हम कहते हैं ट्रिप ऑन, ओके? ट्रिप ऑन का मतलब है किसी जैसे तार के ऊपर आपका पाँव आया और आप लड़खड़ाए, ठीक है? तो ट्रिप ऑन का मतलब भी फॉल्टर है, लड़खड़ाना। लेकिन फॉल्टर का मतलब है आप किसी रुकावट की वजह से लड़खड़ाए, रास्ते में ईंट आ गई, ओके? आप अपनी ऐसे माइंड में दोहरा रहे थे, तो सड़क पे चलते जा रहे थे कि रास्ते में ईंट आई और आप लड़खड़ा गए। ट्रिप ऑन है किसी चीज के ऊपर पाँव आने की वजह से लड़खड़ाए। जैसे तार के ऊपर पाँव आ जाता है तो आपका पाँव थोड़ा सा बैलेंस उसका डिस्टर्ब होगा, ओके? हम कहते हैं ट्रिप ऑन, ओके? बस में खड़े हैं तो आपका पाँव के पाँव के ऊपर आ जाएगा, ट्रिप ऑन, ठीक है? पाँव किसी दूसरी चीज के ऊपर आना और उसकी वजह से लड़खड़ाना, ठीक है? लड़खड़ाना उसमें ट्रिप ऑन है, ओके? सो आई होप कि कुछ आपको कुछ सेटल हुई, सिंक इन हुआ। सिंक इन का मतलब होता है सेटल डाउन। कुछ चीजें देखिए, व्हेन यू लर्न मैनी वर्ड्स, मैनी कैन सिंक इन। कुछ तो इसमें से बैठेंगे ना। यू सी व्हाट यू शुड डू, यू शुड एनहांस योर पावर ऑफ इमेजिनेशन, ओके? फॉर एग्जांपल चले ये तो व्हाइट बोर्ड था एंड आई वाज सेक्रेट मूवमेंट, तो हम I can draw certain diagrams to show you how these words work. देखिए जैसे subaltern मैंने आपको बताया, and you can imagine एक पलंग है और उसके लिए छोटा पलंग है, ये एक सोफा है। subaltern इज आल्सो छोटे सोफे को कहते हैं, पलंग को कहते हैं, ओके? सो जैसे गर्मियों में लोग बाहर बैठे, वो सोफा भी है, बैठने के लिए भी है और सस्ताने के लिए भी है, लाउंज जिसे हम कहते हैं, ओके? तो उसको भी subaltern कहते हैं, ओके? सो सबअल्टर्न का मतलब है एक ऐसा सबऑर्डिनेट पर्सन। तो आई मीन अगर आप इसे इमेजिन करेंगे, ओके, कि कैसा होगा सबअल्टर्न, फॉल्टर कैसा होता है, टेसिटर्न कैसा है, राइट? मैंने आपको कोशिश की है कि आपको साथ एक पिक्चर दी जाए विद वर्ड्स, ताकि आपको उस रेफरेंस से चीजें याद है। अदरवाइज दिस वर्ड्स अलोन कैन नॉट स्टे इन योर माइंड, ठीक है? अनलेस यू पुट इन विद सर्टेन पिक्चर्स, सर्टेन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? So otherwise, so your words available हैं. The object, the purpose over here teaching you is make these words you better understand, and I am trying to give you certain example of context so that you can learn it better than you are learning otherwise on your own. Okay? So जब आप इसे किसी context में, या I am trying to give certain diagrams or imaginary objects, तो आप उसके साथ अटैच करें और उसको माइंड के अंदर रिटेन रखें। Another thing which we should do, you should revise these words after you leave this class. अगर आप ये समझेंगे कि आपने सिर्फ पढ़ा और you understand and you may be able to use it, ये नहीं होगा, okay? Unless you, जब तक कि आप इसको रिपीट नहीं करेंगे on your own, and you keep on revising, you keep on using in your sentences. तो आज के जितने भी वर्ड्स हैं, आप इसको एज एक योर ओन वोकैबुलरी के तौर पे यूज कर ले लें कि आप, these are my words,
I have to use these words in my expression, in my writings. If you don't use, you cannot memorize them. You cannot use them afterwards, right? तो इसका यूजेज का पर्पज ही मेथड ही है कि आप उसे मेमोराइज का मेथड ही है कि आप उसे यूज करें. यू कैन डिस्कस विद ईच अदर दीज वर्ड्स. ठीक है. तो ये जो वोकैबुलरी है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है, सडनली बिल्डअप नहीं होगी. इट विल टेक टाइम. बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो आप क्विकली ग्रैस्प करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आप किस एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, कितनी आपकी इंग्लिश पढ़ी हुई है, कितनी नहीं है. ओके. कितना आपका एसोसिएशन विद लैंग्वेज है, कितनी नहीं है. इट इज डिफिकल्ट टू जज फ्रॉम स्टडिंग हियर. ओके. सो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी आप एफर्ट पुट करते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में. ओके. सो आई होप के next lecture will be different, and I would not use these words in the next lecture. So मुख्तलिफ अल्फाज होंगे. Okay. You can also bring your own words. Okay. ये तो मैंने randomly pick किए हैं. Right. You can also bring your own words कि ये आपको समझ नहीं आ रहे. So I will tell you the meaning of those words, and I will also show you how to use these words and how to use various situations and various imaginative diagrams, work, etc. to use them, understand these words. Right. तो हम उसको एक डिस्कशन टाइप ही रखेंगे क्लास में. ओके. ऑफ कर दें. आप करें जिसको ये आते हैं, ये सिस्टम हैंडल करें. आए आप करें.